ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਨਤਮਸਤਕ, ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 15 ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾ, ਖੰਡ ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪਦ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪਦ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਦ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਔਲੀਏ ਮੌਲੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੋਚਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ,
ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਖੈਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪਦ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਈ? ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹੜਾ DC ਲੱਗਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਵੀਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭੈਣੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਐਜੂਕੇਟ ਬਣਾਓ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁੱਧ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ, ਓਏ ਜਿਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਦਾਮੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜੇਗਾ। ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨੂਵਾਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਪਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ, ਮੂਲਵੰਸ਼, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੰਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਗਲੇ ਦੂਰੋਂ ਫੈਲਾਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਟਕਾ ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਮੂਲਵੰਸ਼ ਦੇ, ਜਾਤ ਦੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ
बुरा व्यवहार भेदभाव किया जाएगा। देखो किड्डी वड्डी किरपा। ये संविधान एवं नहीं मैं कहता भी संविधान पढ़ो, ये साढ़े सतगुरां साढ़े रहबरां साढ़े महापुरखों का संघर्ष का एक दस्तावेज है। जिदन ये गल साढ़े खाने च पै गई ना तो साढ़े बारे न्यारे ने। ताइयों तो मैं बार बार बेनती करता हूँ, जे तुसीं स्वीकार कर लोगे तो तर जाओगे, अपने आने वाली पीढ़ियां नूं तार जाओगे। साडे घरां दा शिंगार गुरबाणी ते संविधान, ये दो चीज़ां अपने घरां दा शिंगार बना लो। तुहानूं कोई गुलाम नहीं बनाएगा तो तुसीं आने वाले समय में राजे बनोगे, शासक बनोगे इस देश के। सो आओ आर्टिकल 16 का पॉइंट दूजा मैं दुबारा तो पढ़ते हैं। राज के अधीन किसी नियुक्ति या पद के संबंध में कानून धर्म मूलवंश जात लिंग जन्म स्थान निवास या इन्हां विच किसी भी आधार पर ना कोई नागरिक वंचित होवेगा, ना ही उस नाल भेदभाव किया जाएगा। मैनूं उम्मीद है कि आप जी नूं समझ लग गई होवेगी। अगे आर्टिकल 16 का पॉइंट तीजा, इस धारा की कोई गल राज नूं पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष विच, पिछड़े हुए नागरिक OBC कैटागरी के लोग जिसका प्रतिनिधित्व राज की राय विच राज के अधीन सेवावां विच काफ़ी नहीं है, नियुक्तियां जां पदां दे राखवे करन लई प्रबंध करन तो वंचित नहीं करेगी। इस आर्टिकल की धारा का जिक्र कर दिता डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने। जिहड़े OBC कैटागरी के लोग ने, जिहड़े पछड़े लोग ने, जिहड़े आर्थिक तौर पर सिक्ख्या तौर पर बहुत ही लो कंडीशन दे विच ने, उन्हां नूं भी अधिकार मिलणगे। ये भारतीय संविधान ने उन्हां लई एक राखवांकरण का एक उपराला कर दिता कि तुहानूं भी राखवांकरण मिलेगा। ते जिहड़े OBC कैटागरी के लोग ने उन्होंने मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहुंदा भी BC कैटागरी वाले वीरो भैनों, ओ भाई OBC वाले आर्टिकल 340 पढ़ो भारतीय संविधान का, जिहदे विच मंडल आयोग एक तुहानूं बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिता गया। मंडल आयोग जिस दिन तुहानूं समझ लग जाएगी, जिहड़े लोग गरीबी दे विच जिउं रहे ने OBC दे, जिन्हां तक अजे तक जिन्हां कोल सिक्ख्या नहीं पहुंची, जिहड़े सिक्ख्या तो अजे भी वंचित ने, आर्थिक तौर पर अजे भी बहुत लो कंडीशन विच ने, बीमारी आउंदी है अपना इलाज नहीं करा सकते, उन्हां नूं आर्टिकल 340 पढ़ना चाहिए। 21वीं सदी का महान विद्वान प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर रौला पा थक गया, पर साडे वीरां दे भैणां दे दिमाग दे विच वो गल नहीं पई जिहड़ी प्रोफैसर गुरनाम सिंह अज तो 40 साल पहलां दी कहंदे आ रहे ने कि आर्टिकल 340 पढ़ो, उन्होंने लागू करवाओ, 340 पढ़ो, उन्होंने लागू करवाओ। है कि है 340 दे विच? टूक मात्र इशारा करदे हां। इस दे विच मंडल आयोग का गठन किया गया जाना चाहिए। ये लिखिया भी मानयोग राष्ट्रपति साहब जी एक मंडल आयोग बना के जिहड़े OBC भाईचारे के लोग ने उन्हां लोकां नूं आर्थिक तौर पर सिक्ख्या तौर पर बराबर लियाउण लई उन्हां नूं राखवाकरण दे के उन्हां लई कोई उपाय बना के उन्हां नूं भी समाज के बराबर लिआंदा जावे। तो मानयोग राष्ट्रपति साहब जी ने 2 बार 70 सालों के 2 बार मंडल आयोग बनाया। भी पहला जिहड़ा मंडल आयोग सी वो काका कालेलकर जी का नाम ते सी, जो 1953 दे विच आया उन्हां दे अगवाई विच। सो ये जरूर पढ़ियो जदों भी मौका मिलिया। मैं इशारा ही करना तो जो आप आर्टिकल 340 ते पहुँचांगे जे बहुत टाइम लग जाना, आपां नूं पहुँचण लगे हाँ, इस करके मैं इशारा कर रहा। 1953 दे विच काका कालेलकर जो एक गठन बनाया गया, कमेटी बनाई गई, उन्हें 2 साल मेहनत की। मेहनत करन तो बाद उन्हें अपना एक दस्तावेज बनाया जिहदे वल सरकार ने ध्यान नहीं किया। 1955 दे विच रखिया सी। उस तो बाद 1979 दे विच देखो जिहड़े OBC दे लोग ने ना, SC ST तो पता लग गए सी, OBC दे लोग पता नहीं लगे।
फिर बहुत मेहनत की गई। मेहनत करने तो बाद पता लग्या भी 3743 जातां, नोट करने वाला पॉइंट है 3743 जातां OBC कैटागरी दियां ने, पछड़े लोगों दियां ने जातां। तो इन्हां दी जे आबादी देखी जाए भारत दे विच 52% है। फिर ये सारा कुछ उन्होंने पता करके है ना, उस तो बाद ये रिपोर्ट तैयार की ते रखी। तो वो रिपोर्ट जिहड़ी 1979 दे विच उन्होंने ये तैयार करनी शुरू की सी, 80 दे विच तैयार हो गई। इस तरह ही 10 साल लंघ गए। फिर 1990 दे विच 1990 दे विच BP सिंह की सरकार आउंदी है। उत्थे आप जी नूं पता कि सरकार डिग जाती है, क्यों डिगदी है भी जरूर पढ़िओ, मैं इशारे ही करने आ। उस तो बाद 1991 में नरसिंह जी की जो सरकार आउंदी है, उन्हें फिर जो OBC कैटागरी के राखवेकरण संबंधी रिपोर्ट सी लागू करनी सी। सो लागू करने लई उन्हें इस गल का ध्यान रखा कि मेरी सरकार भी डिग ना जाए, मैं भी बच जावां ते इन्हां दा भी कुछ कर दिता जाए। उदों फिर तुहानूं समझना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए भी उदों की होया। उदों 27% आरक्षण तुहानूं दिता गया, 52% नूं 27% आरक्षण दिता गया। तो आबादी के हिसाब नाल कितना मिलना चाहिए, तो तुहाडा आरक्षण कौन खा रहा, ये OBC भाईचारे नूं सोचना चाहिए। SC ST नूं तां उन्हां दा आरक्षण मिल रहा उन्हां दी गिणती के मुताबिक। खैर OBC भाईचारे नूं इस वल ध्यान देना चाहिए है। मैं इशारा इसलिए करना सी क्योंकि तुसी हुण भी माणयोग राष्ट्रपति साहब जी तक पहुँच करके आर्टिकल 340 नूं पढ़ के जिहड़े अजे भी गरीबी की रेखा दे विच OBC भाईचारे के लोग रह रहे ने, उन्हां तक सिक्ख्या नहीं पहुँची, उन्हां तक मैडिकल सहूलतां नहीं पहुँचियां, वो अजे भी बीमारी दे विच गरीबी की दलदल दे विच जीवन बतीत करते हैं, अजे भी अनपढ़ ने, अजे भी अणसिੱਖਿਅਤ ने। उन्होंने बराबर लियाउण लई तुहानूं आर्टिकल 340 फिर दोहराउणा पएगा। ये मैं इशारा इसलिए किया क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 16.3 विच लिखिया कि इस धारा की कोई गल राज नूं पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग दे पक्ष विच जिसका प्रतिनिधित्व राज की राय विच राज के अधीन सेवावां विच काफ़ी नहीं है। प्रतिनिधित्व का मतलब हुंदा हिस्सा नहीं है। नियुक्तियां या पदां के राखवेल करन लई प्रबंध करन तो वंचित नहीं करेगी। वो सारा तुहानूं पढ़ना पएगा, फिर तुहानूं समझ लगेगी। मैं टूक मात्र इशारा कर दिता। तो नियुक्तियां या पदां दे, नियुक्तियां जिहड़ियां सरकारी नौकरियां हो गईयां, किसी भी पद ते किसी भी विषय ते राखवे कर लई प्रबंध करन तो वंचित नहीं करेगी। इन्हां नूं भी ये नहीं कह सकेगी कि नहीं भाई तुहानूं ये अधिकार नहीं दिता जाता, क्योंकि इन्हां दे विच भी बहुत गरीब लोग ने, बहुतात विच जिहड़े पछड़े लोग ने। खैर अगला जिहड़ा चौथा पॉइंट है आर्टिकल 16 का, इहनूं पढ़ते हैं। इस धारा की कोई गल राज नूं SC अते ST दे पक्ष विच जिन्हां दा प्रतिनिधित्व राज की राय विच राज के अधीन नौकरियां विच नहीं है, राखवें कर लई उपाय करन तो वंचित नहीं करेगी। तुहानूं पता भारत दे विच SC ST दे जिहड़े लोग ने बहुतात गिणती विच ने, बहुत पछड़े हुए, बहुत नीवें लोह ते इह बैठे ने। जिहड़े ST ने ना, इन्हूं शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, आदिवासी लोग कहते हैं, जिहड़े जंगलों के विच विचारे बैठे ने। भारतीय संविधान कह रहा भी वो जंगलों के विच बैठे हुए लोगों नूं भी नौकरियां मिलनियां चाहिदियां ने। उन्हां दे बच्चे भी स्कूलों विच, कालजां विच, यूनीवर्सिटियां विच पढ़ने चाहिए ने। वो भी सरकारी अदारियां विच ऑफिसर लगे होने चाहिए ने, किसी ना किसी पद ते, किसी ना किसी विषय ते वो भी नौकरियां प्राप्त करके बैठे होण। इसलिए ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 खंड 4 दे विच दस दिता। ये नाल ही ST दे नाल ही SC का भी जिक्र कर दिता कि जिहड़े SC दे लोग ने, जिहड़े अजे भी गरीबी की दलदल दे विच, अनपढ़ता की दलदल दे विच, बीमारियां दे विच अजे भी घिरे हुए ने, उन्होंने भी भाई नौकरियां का प्रबंध करके एक राखवाकरण देना चाहिए है, तां वो अपने आप की स्थिति है जिहड़ी समाज के बराबर लिया सकन। किसी वर्ग जां वर्गां के पदां के सीनियोरिटी सहित
पद उन्नति के मामलों में जेकर उन्होंने नौकरी मिल जाती है तो अगे उन्होंने प्रमोशन होंगी है। नौकरी में तो आरक्षण मिलना तो प्रमोशन में भी कहते मिलना चाहिए SC ते ST नूं। नोट करने वाला पॉइंट है। खैर अगे इस आर्टिकल की कोई गल राज नूं किसी साल विच कोई ना भरे गए ऐसे स्थानां नूं जो खंड 4.4 आर्टिकल 16 का जिहड़ा 4 नंबर खंड है उहदे भी अगे पॉइंट शुरू हो जाते हैं। मैं वो तां करके नहीं जिक्र किया कि जां मैनूं समझाउण दे विच जां तुहाडे समझण दे विच कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आवे, सो इत्थे जिक्र कर दिता। मैं तां दसना चाहुंदा कि खंड 4 या खंड 4 क दे अधीन किए गए राखवे कर लई किसी नियम अनुसार उसे साल विच भरे जाण लई राखवे हन। किसी आउण वाले साल या सालां विच भरे जाण लई अलग वर्ग दे स्थानां दे रूप विच विचार करन तो वंचित नहीं करेगी अते अजिहे वर्ग दे स्थानां ते उस साल दे स्थानां दे नाल जिस विच वो भरीआं जा रहीआं हन ਉਹ साल की कुल गिणती के संबंध में 50% राखवे करन दी सीमा जिहड़ी है वो वध तो वध पालन करने लई विचार नहीं किया जाएगा। 50% की जो आरक्षण की सीमा रखी गई है ये तो वध विचार वटांदरा नहीं किया जाएगा। सो ये भी तुहानूं अगे जो भारतीय संविधान दे विच खंड पढ़ने पैणे आ कि जिहड़ा राखवा करना है वो किमें अगे वधदा किमें नहीं वधदा, ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मसला, इनू भी समझना पैना। इत्थे जिहड़ा गल जिक्र किया वो ये है, मैं एक बार फिर दोहरा के तुहानूं समझाउण दा यतन करदा। इस आर्टिकल की कोई गल राज नूं किसी साल विच कोई ना भरे गए स्थानां नूं जो 4 जां खंड 4 के दे अधीन राखवे कर लई किसी नियम अनुसार। मान लो सरकार ने 100 नौकरियां कढ़ियां, 50 नौकरियां जरनल कैटागरी लई ते 50 SC ST OBC लई जिहड़ियां कैटागरियां ने उन्हां लई। जरनल 50 सीटां भर दिंदी है, बाकी बचियां ST OBC ते SC दियां 50, उन्हां दे विचों 40 भर जांदियां ने, जे 10 रह जांदियां ने फिर अगले साल जिमें मंत्री कहते हैं ना हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ या 5 करोड़ नौकरी देंगे अपनी सरकार में से, दिंदे ने किते जे 5 करोड़ नौकरियां मिलन तो देखो किन्ने लोगों को रोज़गार मिलेगा। कहते हैं ना आपां इत्थे समझण दी 100 नौकरियां रखियां ने, जे 1 करोड़ 2 करोड़ ते चले गए तो जुमले में आ जावांगे, उधर आपां नहीं जाना। कहण दा मतलब ये है समझाउण लई 100 नौकरियां दे विचों 50 जरनल दियां हो गईयां, 50 SC ST OBC दियां हो गईयां। जरनल ने 50 दियां 50 फिल कर दित्तियां भर दित्तियां ते OBC ने SC ने ST ने कैटागरियां ने 40 भरियां 10 रह गईयां। जो अगले साल नौकरियां फिर दित्तियां सरकार ने, मान लो अगले साल 200 नौकरियां कढ़दी है तो 200 नौकरियां दे विचों फिर अदद किया जाएगा 100 नौकरियां जरनल दियां, 100 SC ST OBC दियां। जिहड़ियां पिछले साल दियां 10 नौकरियां बचियां सी वो SC ST OBC दे खाते विच ही पाईयां जाणगियां, ना कि जरनल वाले पासे लैके आउणियां ने, ये इधर ही रहणगियां। जे आपां पिछलियां 10 नौकरियां दे नाल 200 नौकरियां अटैच कर दिंदे जिहड़ियां दूसरे साल में कढ़ियां ने तो 210 बन जाणगियां, फिर 105 आउणगियां। वो कहते 105 नहीं 100 नौकरियां इधर तो 100 ही इधर, जिहड़ियां 10 पिछले साल दियां रहिंदियां ने वो SC ST ते OBC नूं ही मिलणियां चाहीदियां ने। अगे 50% का जिहड़ा राखवा करना वो आप जी नूं बहुत ही लंबेरा टाइम लगेगा, विशा बहुत गंभीर है तो बहुत लंबा, तो उहदे ते टाइम लगेगा कि किवें इह वधदा जां किवें इहदे दायरे विच रहा जांदा, ये फिर गलबात करांगे। सो अगे जिहड़ा आर्टिकल 5 है, माफ़ करना आर्टिकल 16 का पॉइंट 5 है, इस विच इस आर्टिकल की कोई गल किसी ऐसे कानून के परिवर्तन उत्ते प्रभाव नहीं पावेगी जिहड़ी कहती है कि किसी धार्मिक या संप्रदायिक संस्था के कार्यकाल नाल संबंधित कोई अहुदेदार या मैंबर किसी विशेष धर्म नूं मनण वाला या विशेष संप्रदाय नाल संबंधित ही होवे। इहदा मतलब ये है भारतीय संविधान का आर्टिकल 16.5 आख रहा है
कि कोई भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थान है उन्हां दा कोई अपना प्रबंध है, उन्होंने चलाउण लई उस धर्म का बंदा ही रखिया जाएगा। मान लो जिवें फौज है, मानयोग फौजी साहिबान ने साडे जिन्हां विच भैणां भी ते वीर भी शामिल ने। फौज दे विच जिहड़ियां छाउणियां बणीਆਂ ने, आप जी नूं पता भी उत्थे धार्मिक स्थान भी बने ने, गुरुद्वारा साहिब भी उन्होंने बनाए हुए ने, मंदिर भी बनाए हुए ने, मस्जिद भी बनाई है, चर्च भी बनाई है। जिहड़े जिहड़े अपने अपने धर्म नूं लोग मनते हैं उन्होंने पूजा स्थान बनाए हुए ने। और फौज दे विच भी जे ग्रंथी सिंह रखना होवे तो सिख धर्म का ही रखा जाएगा, जे पंडित रखना होवे तो हिंदू धर्म का ही रखा जाएगा, जे मौलवी रखना चाहे मस्जिद दे विच तां वो अपने धर्म का ही रख सकते आ। उत्थे मेरे वर्गा जाके कहे नहीं जी मैनू तो अधिकार है बराबर का, मैनू इत्थे लगाया जाए मस्जिद दे विच या मंदिर दे विच, नहीं, वो अपने धर्म का ही रख सकते ने। हर एक नूं ये अधिकार है। जिवें श्रोमणी कमेटी है, अकाल तख्त साहिब है, इहदे विच सिख ही नुमाइंदे बन सकते हैं, सिख ही जा सकते हैं। कोई अदर धर्म का आके आखे भी मैनू अधिकार दिता संविधान ने, मैं भी हाज़र होना चाहना, यही भारतीय संविधान का आर्टिकल कह रहा। नहीं भाई, उन्हां दे धर्म दे विच उन्हां दे जो निजी दायरा धार्मिक स्थान आ उहदे विच संप्रदायिक आ, धार्मिक आ, उहदे विच उन्हां दे धर्म दे ही रहणगे, दूजा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैनू उम्मीद है कि इस दी आप नूं समझ लग गई होवेगी। जिवें फौज दे विच गुरुद्वारा साहिब बनिया तो सिखां दा ही उत्थे ग्रंथी रखा जाता, मस्जिद बनी है तो मुसलमान भाईचारे का ही उत्थे मौलवी रखा जाता, चर्च बनी है तो ईसाई या पादरी कोई भी उत्थे रखे जाते हैं। उस तो बाद जे कोई मंदिर बनया तो हिंदू धर्म के नाल जो संबंधित है वो रखे जाते हैं। ये भी भारतीय संविधान ने क्लीयर कर दिता, स्पष्ट कर दिता कि आने वाले समय में कोई रौला ना पावे कि मैं फलाने धर्म का मोढी बनना, मैं इधरले धर्म के विच जाके जथेदार बनना, है ना, ये नहीं हो सकता। ये गल नूं भारतीय संविधान के आर्टिकल 16.5 दे विच भी क्लीयर कर दिता गया है। भारतीय संविधान पढ़ते हैं, विचारां करते हैं, मेरे तो एक नहीं अनेक गलतियां हो गई होणगियां, सो मुआफ़ करना, मेरियां गलतियां मैनूं दस्सण दा यतन करना। सो अगली वीडियो दे विच आर्टिकल 17 नूं लैके हाज़र होवांगे। आर्टिकल 17 बहुत ही महत्वपूर्ण विषा छूआछात का अंत, जिहदे विच साडे रहबरां ने, साडे सतगुरां ने धज्जियां उड़ा के रखियां। कबीर साहब ने तो मैं कहना सिरा ही ला छड्डिया। गुरु साहिबाना ने जिहड़ा इतिहास सिरजिया, साडे बहुजन महापुरखों ने जो संघर्ष किया, बाबा साहब ने उन्होंने किमें कलमबंद किया, किमें आर्टिकल 17 लिखिया वा, भावें कि आर्टिकल 17 के प्रति आर्टिकल 35 दे विच जिक्र किया गया, वो आपां अगली वीडियो दे विच जिक्र करांगे। सो इन्नियां बेनतियां करदा होया मैं खेमा दा जाचक हाँ। अगली वीडियो दे विच आप जी नूं मिलांगे। तद तक लई वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।